بلٹن کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ نواز شریف اور آصف زرداری دونوں سلیکٹڈ تھے۔ مریم نواز کو بیٹی ہونے اور بلاول بھٹو کو پرچی کی وجہ سے پارٹی میں پوزیشن ملی۔ پافن رپورٹ کے مطابق 2013 کی نسبت 2018 کے انتخابات زیادہ بہتر تھے۔ خارجہ پالیسی حکومت کی ہے۔ عاصم سلیم باجوہ نے تمام الزامات کا تفصیل سے جواب دیا۔ کسی کو اعتراض ہے تو نیب سے رجوع کر سکتا ہے۔ اپوزیشن کو پی ٹی وی پر وقت ملنا چاہیے۔ وزیر اعظم نے ان خیالات کا اظہار ایک نجی ٹی وی سے انٹرویو میں کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اپوزیشن صرف این آر او چاہتی ہے۔ عوام کا پیسہ چوری کرنے والوں کا مکمل احتساب ہوگا۔ نواز شریف اور آصف زرداری کے اوپر کیسز ہیں، وہ انہوں نے ایک دوسرے پہ، جب یہ پہلی دفعہ پاور میں تھے، جب ہم گورنمنٹ میں آئے ہیں، اسحاق ڈار ان کے بیٹے باہر بھاگ چکے تھے، نواز شریف کے بیٹے باہر بھاگ چکے تھے، سلمان شہباز باہر بھاگ گیا، لیکن کیسز ان کے اوپر پرانے تھے، ہمارے نہیں تھے۔ ہمارے جو کیسز بنے ہیں وہ صرف بنے ہیں شہباز شریف کے اوپر۔ وہ کیسے بنے ہیں؟ وہ بنے جب ہمارا جو ایسٹ ریکوری یونٹ کے اندر ان کی وہ ٹی ٹیز کے اوپر ان کی جو انہوں نے جو یہاں سے باہر منی لانڈرنگ کی تھی وہ آ گئی اس کے اندر، ٹھیک، تو وہ کیسز ہیں۔ اس کے علاوہ جو ان کے کیس جو باہر بھاگے وہ سارے ہمارے سے پہلے، عابد شیر علی ہمارے سے پہلے کے بھاگے ہوئے ہیں۔ اداروں کو ہم پورا کہیں گے کہ جنہوں نے اس ملک میں عوام کا پیسہ چوری کیا ہے ان کا پورا احتساب ہو۔ اور یہاں آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں گے۔ نائجر کی دارالحکومت نیامے میں او آئی سی وزرائے خارجہ کونسل کے 47ویں اجلاس میں تنازع جموں کشمیر پر قرارداد منظور کر لی گئی ہے۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ جموں کشمیر تنازع 7 سے زائد دہائیوں سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ایجنڈے پر ہے۔ بھارت کے 5 اگست 2019 کے اقدامات سلامتی کونسل کی قراردادوں کی براہ راست توہین ہیں۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ نائجر کے دارالحکومت نیامے میں او آئی سی وزرائے خارجہ کونسل کے 47ویں اجلاس میں تنازع جموں و کشمیر پر قرارداد منظور کر لی گئی ہے۔ قرارداد کے مطابق بھارتی اقدامات کا مقصد مقبوضہ خطے میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنا، استصواب رائے سمیت کشمیری عوام کے حقوق چھیننا ہے۔ تنظیم نے بھارت کے جارحانہ اقدامات، بالاکوٹ سانحہ، کنٹرول لائن اور ورکنگ باؤنڈری پر جارحیت کی مذمت کی اور بھارت پر زور دیا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کے فوجی مبصر گروپ کا کردار ایل او سی کے دونوں طرف بڑھائے۔ نائجر کی دارالحکومت نیامے میں او آئی سی وزرائے خارجہ کونسل کا 47واں اجلاس ہوا، جس میں تنازع جموں کشمیر پر قرارداد منظور کر لی گئی ہے اور بھارتی پروپیگنڈا اس وقت ناکام ہو چکا ہے۔ قرارداد میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ بھارت کے جموں کشمیر، سرکریک اور دریائے پانی سمیت تمام تنازعات عالمی قانون اور ماضی کے معاہدات کے مطابق طے کیے جائیں۔ اقوام متحدہ سمیت عالمی برادری مقبوضہ کشمیر میں صورتحال کی نگرانی کرے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل خصوصی ایلچی کا بھی تقرر کریں۔ قرارداد میں یہ بھی مطالبہ کیا گیا ہے۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ آپ کو بتائیں بھارت کا پروپیگنڈا ایک مرتبہ پھر ناکام ہو گیا ہے اور نائجر کے دارالحکومت میں ہونے والے او آئی سی کے وزرائے خارجہ کونسل کے 47ویں اجلاس میں تنازع جموں و کشمیر پر قرارداد منظور کر لی گئی ہے۔ نائجر میں او آئی سی وزرائے خارجہ کونسل کے 47ویں اجلاس میں پاکستان کو ایک بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے، جب تنظیم نے مقبوضہ کشمیر اور اسلاموفوبیا کے حوالے سے پاکستان کی طرف سے پیش کی گئی قراردادیں متفقہ طور پر منظور کر لی ہیں۔ پاکستان کو سفارتی سطح پر ایک بڑی کامیابی ملی ہے، جس سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ اس اجلاس کے دوران وزیر خارجہ نے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال، بھارت کی ریاستی دہشت گردی، اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کے ساتھ تحقیر آمیز رویے اور اسلاموفوبیا کے بڑھتے ہوئے رجحان، مسئلہ فلسطین، افغان امن عمل میں پاکستان کے مثبت کردار کو بھی بالخصوص اجاگر کیا۔ اجلاس کے دوران یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ تنظیم کے وزرائے خارجہ کا 48واں اجلاس پاکستان میں منعقد کرایا جائے گا۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ آپ کو بتائیں اور سرائی وزرائے خارجہ کونسل کے 47ویں اجلاس میں پاکستان کو بڑی سفارتی کامیابی ملی ہے۔ مجھے یہ بتاتے ہوئے مسرت محسوس ہو رہی ہے کہ مجھے یہ شرف حاصل ہوا کہ میں نے آج اور کل کے اجلاسوں میں کشمیر کا اور کشمیریوں کا مقدمہ بھرپور طریقے سے پیش کیا اور الحمدللہ سارے اجلاس نے، کاؤنسل آف فارن منسٹرز نے اپنی بھرپور حمایت کا یقین دلایا اور پاکستان کی جو کشمیر کی قرارداد ہے اس کو متفقہ طور پر منظور کیا گیا۔ یہ بھی مجھے بتاتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ متفقہ طور پر اسلاموفوبیا
کہ اس बढ़ते हुए ट्रेंड के खिलाफ पाकिस्तान की करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर की गई। फ़लस्तीन के बारे में क्या सराहियाँ हो रही थीं, पाकिस्तान के मौक़िफ़ के बारे में मीडिया में बातें चल रही थीं, तो आज के इजलास में मुझे पाकिस्तान की जो पोजीशन है, पाकिस्तान की जो मौक़िफ़ है, उसको वजाहत का मौका मिला और दो टोक अल्फाज में वो जितनी अफवाहें थीं वो आज इंशाअल्लाह दम तोड़ जाएंगी। पाकिस्तान का तारीख़ी मौक़िफ़ बरकरार है और पाकिस्तान अपने असूली मौक़िफ़ पर कायम है। अहम खबर आपने जानी, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं, सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि यूनिवर्सिटियों के पास वर्चुअल तालीम के जरिए अपने मयार को बढ़ाने का सुनहरी मौका है। उन्होंने ये बात कराची में हाजी हनीफ तैयब की सरकर्दगी में सिविल सोसाइटी के वफ्द से बातचीत के दौरान कही। वफ्द ने उन्हें फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को दरपेश मसाइल से आगाह किया। डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि कोरोना वायरस के फैलने से पाकिस्तान में ऑनलाइन तालीम की अहमियत बढ़ गई है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी सस्ती और मयारी तालीम फराहम करके ऑनलाइन तालीम में अहम किरदार अदा करती रही है। उन्होंने कहा कि फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भी ऑनलाइन तालीम को फ़रोग़ देना चाहिए। वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने कहा है कि मेरिट का निज़ाम और शफाफियत हुकूमत की अहम तरजीह है। बुनियादी ढांचे की तरक्की और आवाम को सहूलियात की फराहमी पर भी तवज्जो दी गई है। उन्होंने कहा कि माजी की हुकूमतों ने बदकिस्मती से ज़ाती मफादात को मुल्की मफाद पर तरजीह दी, लेकिन वज़ीर आज़म का कोई ज़ाती मफाद नहीं, उनका मिशन पाकिस्तान को खुशहाल बनाना है। कोहाट में मीडिया से गुफ्तगू में वफाकी वजीर ने कहा कि तहरीक इंसाफ हुकूमत में आई तो मुआशी चैलेंजेस दरपेश थे। मईशत का पहिया चलाने के लिए सनतों और कारोबार के लिए खुसूसी पैकेज दिया गया। वफाकी वजीर ने कहा कि PTI हुकूमत ने कोहाट और जनूबी अजला की तरक्की पर तवज्जो दी। कोहाट शहरा की तकमील से इलाके के आवाम को फ़ायदा होगा। उन्होंने कहा कि हम ऐसा निज़ाम बनाएंगे जिसमें आवाम फैसले करेंगे। सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि हुकूमत के तमाम पॉलिसियों का महवर पसमानदा तबके की बहाली है। एहसास प्रोग्राम और सेहत कार्ड अवामी फलाह के मंसूबे हैं। लड़काना के करीब बाकरानी में तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वजीर असद उमर ने कहा है कि हम खानदान नहीं, आवाम की सेहत को सामने रख कर फैसले करते हैं। आसिफ जरदारी की सियासत ज़ात के लिए और आवाम के लिए और है। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी वफाक में 4 और सिंध में 6 दफ़ा हुकूमत में रह चुकी है, मगर जब लाड़काना और दूसरे इलाकों को देखते हैं तो यूँ लगता है कि ये अपोजिशन के इलाके हैं। उन्होंने कहा कि आसिफ अली जरदारी के दौलत सराय महल, अबू ज़हबी और स्विट्ज़रलैंड के बैंकों में नजर आती है, सिंध में कहीं दिखाई नहीं देती। तकरीब से PTI रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी और दूसरे मुकर्ररीन ने भी खिताब किया। लाड़काना में मौज़म अबड़ू की रिहाइशगाह पर तकरीब से खिताब करते हुए असद उमर ने कहा कि उनके दौरे का मकसद कराची के अलावा सिंध के दूसरे इलाकों की तरक्की का तरक्याती पैकेज तैयार करना है। उन्होंने कहा कि वो अपने इत्तेहादियों को साथ लेकर चलेंगे और मुस्तकबिल में ताउन नजर आएगा। इससे कबल वफाकी वजीर ने मरहूम मुनव्वर अब्बासी के बेटे मौज़म अब्बासी और भाई सफदर अब्बासी से मुलाकात की और मुनव्वर अब्बासी के इंतकाल पर ताज़ियत की। इस मौके पर नाहिद खान भी मौजूद थीं। वफाकी वजीर असद उमर ने लाड़काना के करीब रतोडेरों में अमीर बख्श भुट्टो से उनके आबाई गांव में मुलाकात की, जिसमें सिंध की सियासी सूरत हाल, मुस्तकबिल के लाहे अमल और पार्टी को मुतहर्रिक करने समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मनसूबाबंदी और तरक्की के वजीर असद उमर ने कहा है कि अपोजिशन कोरोना सूरत हाल पर सियासत कर रही है, जबकि हुकूमत की तमाम तर तवज्जो आवाम के तहफ़्फ़ुज़ और रोज़गार पर मरकूज़ है। सक्खर में सहाफ़ियों से बातें करते हुए उन्होंने कहा कि अपोजिशन वाले अपनी जानों की तरह कारकुनों के तहफ़्फ़ुज़ का भी सोचें। अपोजिशन ने सिर्फ 4 इजलासों में शिरकत के बाद पार्लिमानी कमेटी कोरोना का बायकॉट कर दिया। उन्होंने कहा कि हम नवाज शरीफ को बार बार पाकिस्तान वापस आने की दावत दे रहे हैं। असद उमर का कहना था कि बदकिस्मती से सक्खर के अवाम को साफ पानी भी नहीं मिल रहा, जहाँ से दरिया सिंध गुजर रहा है, जो सिंध हुकूमत का काम है। सक्खर में तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वजीर असद उमर ने कहा कि अपोजिशन जमात के रहनुमा अपने खानदान में शादी की तकरीब में शिरकत के लिए कोरोना टेस्ट लाजमी करार दे रहे थे, जबकि PDM के जलसों में आवाम को ज्यादा से ज्यादा शिरकत पर जोर दिया जाता है, जो दोहरा मयार है। सक्खर में नौजवानों से खिताब करते हुए असद उमर ने कहा कि मुल्क के तमाम इलाकों में यकसां तरक्की चाहते हैं। बदकिस्मती से सक्खर और सिंध के दूसरे इलाकों में कोई भी तरक्याती अमल नजर नहीं आता। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में पायदार अमन से इक्तिसादी सरगर्मियों को फ़रोग़ मिलेगा।
आगे बढ़े आपको बताएं कि वजीर सनत व पैदावार हम्माद अजहर ने कहा है कि निजी शोबे की शमूलियत से गुज़िश्ता 5 साल से बंद पाकिस्तान स्टील को अपने पांव पर खड़ा किया जाएगा। इदारे की बदहाली के जिम्मेदार आज 230 अरब रुपए के कर्जे में डूबी मिल्स को बेहतर बनाने की बजाय सियासत कर रहे हैं। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि निजी शोबे के तजर्बे और टेक्नोलॉजी से स्टील मिल्स को बहाल किया जाएगा। हुकूमत पाकिस्तान 35 अरब रुपए के करीब एक बंद मिल में मुलाजमीन की तनख्वाहें अदा कर चुकी है और माहाना इस बंद मिल के मुलाजमीन को तनख्वाह देने के लिए जो रकम चाहिए वो 75 करोड़ रुपए है। ये फैसला किया गया कि एक प्राइवेट इन्वेस्टर को इसमें शामिल किया जाएगा। दूसरा, ये 4,500 मुलाजमीन को टर्मिनेट कर रहे हैं, औसतन 23 लाख रुपया फी मुलाजिम अदा किए जाएंगे। अगर ये बर वक्त फैसले कर लिए जाते तो ये इतने 100 अरब अगर हुकूमत अपने तरक्याती फंड में लगाती तो इससे लाखों रोजगार पैदा होना था। सिंध हुकूमत को दावत देता हूं कि प्राइवेटाइजेशन कमीशन की बिड में हिस्सा ले। अगर बिड के अंदर सबसे ज्यादा रकम उनकी है तो वो इसको ले लें। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। आपको बताएं, सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार मसूद खान ने इस्लामी ताउन तंजीम पर जोर दिया है कि वो कश्मीरियों की नस्ल कुशी बंद कराने के लिए मुदाखलत करे। कश्मीर के लोग बदतरीन इस्लामोफोबिया, रियासती दहशतगर्दी और नौआबादियाती निज़ाम से लड़ रहे हैं। नाजर के शहर नियामे में इस्लामी वज़राए ख़ारजा कौंसिल के दूसरे वर्किंग सेशन से खिताब में सरदार मसूद खान ने कहा कि कश्मीरी अवाम पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि 1 अरब 80 करोड़ मुसलमान और 57 इस्लामी मुल्कों में से कोई भी नहीं जो उनकी मदद को आए। भारत एक जारे और जालिम मुल्क है जो आज़ादी और हक़ खुदरादियत मांगने वालों को कत्ल कर रहा है। आज़ाद कश्मीर में हर रोज़ बच्चे, ख़वातीन और बुजुर्ग भारतीय फ़ौज की गोलियों का निशाना बन रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने नाजर के वज़ीर आज़म बुर्जी राफ़ेनी से मुलाकात की है, जिसमें दो तरफ़ा ताल्लुकात, मकबूजा जम्मू कश्मीर की सूरत हाल, इक़्तिसादी और तिजारती ताउन के फ़रोग़ समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख़याल किया गया। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि पाकिस्तान ज़राअत, आबपाशी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के शोबों में नाइजर की मुआवनत करेगा। शाह महमूद कुरैशी ने बताया कि हुकूमत पाकिस्तान नाइजर के सैलाब ज़दगान की मदद के लिए चावलों की 1,20,000 थैले, खेमे, अद्वियात और कंबल भिजवा रही है, जो अनकरीब नाइजर पहुँच जाएगी। उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से नाइजर के तलबा के लिए 200 वज़ाइफ देने का भी ऐलान किया। नाइजर में OIC वज़राए ख़ारिजा कौंसिल के 47वें इजलास के मौके पर वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कई ममालिक के रहनुमाओं के साथ मुलाकातें की। कुवैत के वज़ीर ख़ारजा शेख डॉक्टर अहमद सबा से मुलाकात के दौरान दो तरफ़ा ताल्लुकात, कोरोना चैलेंज, मकबूजा जम्मू और कश्मीर और ख़ित्ते में अमन व अमान की सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख़याल किया गया। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि कोरोना ने दुनिया भर की मईशत को मुतासर किया है। पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक के लिए कोरोना वबा के मुआशी मुज़मिरात से निमटना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। शेख अहमद अस्सबा ने अमीर कुवैत और अवाम की जानिब से पाकिस्तान की क़यादत और अवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। अमाराती बैनुल-अक़वामी ताउन के उमूर के वज़ीर मुमलिकत रेमल हाशमी के साथ बातचीत के दौरान वज़ीर ख़ारिजा ने पाकिस्तानी शहरियों को UAE के वीज़े के हुसूल में दरपेश मुश्किलात से आगाह किया और उनके जल्द अज़ाले की ज़रूरत पर जोर दिया। फ़रीक़ैन ने दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर भी इत्तफ़ाक़ किया। सूडान के वज़ीर ख़ारजा इस्मा अब्दुल्ला के साथ मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात और सरमायाकारी में फ़रोग़ के हवाले से तबादला ख़याल किया गया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अफ्रीकी मुल्कों के साथ मुआशी ताल्लुकात को मुस्तहकम करने की हिकमत अमली पर अमल पैरा हैं। दोनों वज़राए ख़ारजा ने दो तरफ़ा इक़्तिसादी ताउन के फ़रोग़ के हवाले से मुशावरती सिलसिला जारी रखने पर इत्तेफ़ाक़ किया। वज़ीर ख़ारिजा ने सोमाली हम मनसब अहमद ईसा ऊद से भी मुलाकात की। इस मौके पर फ़रीक़ैन ने दो तरफ़ा इक़्तिसादी ताउन के हवाले से रवाबित के फ़रोग़ पर इत्तेफ़ाक़ किया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान इस्लामी बिरादर मुल्क होने के नाते सोमालिया के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात के मज़ीद फ़रोग़ को ख़ुसूसी अहमियत देता है। सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक के 551वें जन्मदिन के हवाले से ननकाना साहब में तकरीबात का आगाज़ हो गया है। 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज़ गुरुद्वारा जन्मस्थान में हुआ, जिसमें भारत समेत मुख्तलिफ ममालिक से सिख यात्रियों की बड़ी तादाद शिरकत कर रही है। सिख बरादरी की तरफ से पाकिस्तान की तामीर और तरक्की, अमन व अमान और दुनिया भर से कोरोना वायरस के जल्द खात्मे के लिए दुआएं की गईं। 3 रोज़ा तकरीबात का अख्ताम 30 नवंबर को होगा। ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए ख़ुसूसी इंतजामात किए गए हैं। वज़ीर दाखिला एजाज शाह ने गुरुद्वारा ननकाना साहब का दौरा किया और बाबा गुरु नानक की सालगिरह के हवाले से इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा कि हुकूमत अक़लियतों के हवाले से बहुत संजीदा है और मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए आसानियाँ भी पैदा कर रही है। उन्होंने कहा कि करतारपुर राहदारी पर भारत की जानिब से रुकावटें डाली जाती हैं। पाकिस्तान खित्ते में अमन की बात करता है और दुनिया में कहीं भी मजहबी रसूमात की अदायगी पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। वज़ीर दाखिला ने कहा कि अपोजिशन के जलसों से अवाम की जान को खतरे में डाला जा रहा है। मुल्क में तेजी से बढ़ते कोरोना वायरस के लिए निहायत एहतियात की ज़रूरत है।
बाबा गुरु नानक के 591वें सालगिरह के मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए सिंध के गवर्नर इमरान इस्माइल ने कहा कि पाकिस्तान में मुसलमानों की तरह अक़लियती बिरादरी को भी मुकम्मल आज़ादी हासिल है। उन्होंने कहा कि यहाँ तमाम मज़ाहिब के लोग खुद को ज़्यादा महफूज महसूस करते हैं, लेकिन इसके बरक्स भारत में मुसलमानों समेत तमाम अक़लियतें खुद को गैर महफूज समझती हैं। गवर्नर ने कहा कि कश्मीर के मुसलमानों पर ढाए जाने वाले मज़ालिम के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने पर पाकिस्तान के सिख और हिंदू बरादरी के मशकूर हैं। पाकिस्तान सिख कौंसिल के सदर सरदार रमेश सिंह ने कहा कि करतारपुर कॉरिडोर का मनसूबा शुरू करके वज़ीर आज़म इमरान खान ने तारीख रकम कर दी है। इससे कबल गवर्नर सिंह ने बाबा गुरु नानक की सालगिरह का केक भी काटा। जिक्र करेंगे जन्नत नज़ीर वादिये कश्मीर का। नरेंद्र मोदी की फैसिस्ट हुकूमत कश्मीरी नज़रबंदों को उनके सियासी नज़रियात की वजह से इंतकाम का निशाना बना रही है और मुख्तलिफ ओछे हथकंडों के जरिए उनकी गैर कानूनी नज़रबंदी को तूल दे रही है। कश्मीर मीडिया सर्विस की तज्जियाती रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने गुज़िश्ता बरस 5 अगस्त से रवां बरस अक्टूबर तक मकबूजा कश्मीर में 13,862 अफराद गिरफ्तार किए। इनमें खवातीन रहनुमा आसिया अंद्राबी, फहमीदा सूफी और नाहिदा नसरीन भी शामिल हैं, जिन्हें जेल की कोठरियों तक महदूद कर दिया गया और उन्हें इलाज मुआलजे की सहूलत भी मुयस्सर नहीं। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत मकबूजा इलाके में इजहार राय की आज़ादी का हक दबाने के लिए काले कानून पब्लिक सेफ्टी एक्ट का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान 1500 से ज्यादा अफराद को काले कानून पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया। सीनियर हुर्रियत रहनुमा मुस्तरद आलम भट्ट की नज़रबंदी को तूल देने के लिए उन पर अब तक 38 मरतबा पब्लिक सेफ्टी एक्ट लागू किया जा चुका है। रिपोर्ट में आलमी बरादरी और इंसानी हुकूक के इदारों पर जोर दिया गया है कि वो कश्मीर के सियासी नज़रबंदों की रिहाई के लिए अपना किरदार अदा करें। जम्मू कश्मीर इंटरनेशनल फोरम फॉर जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स के चेयरमैन मोहम्मद एहसन अवंतो ने एक बयान में पैलेट से मुतासरा अफराद की सेहत के संगीन मसाइल के बावजूद मुख्तलिफ काले कवानीन के तहत गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार किए गए ये नौजवान पैलेट शरों की वजह से होने वाली माजूरी के बायस पहले ही जहनी तनाव का शिकार हैं और कैद में होने की वजह से अपना इलाज भी नहीं करा सकते। हुर्रियत रहनुमाओं और कारकुनों इंजीनियर हिलाल अहमद वार, काजी मोहम्मद इरशाद, जावेद अहमद चांगा और महराजुद्दीन शेख ने कहा है कि रियासती अवाम ने बेशबहा कुर्बानियाँ इंतखाबात के लिए नहीं बल्कि हक़ खुदरादियत के हुसूल के लिए दी हैं। मकबूजा इलाके की हाई कोर्ट ने पुलवामा के रिहायशी निसार अहमद काजी की पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत नज़रबंदी कल अदम करार देते हुए काबिज इंतजामिया को उन्हें फौरी तौर पर रिहा करने के अहकामात दिए हैं। बात करेंगे कोरोना सूरत हाल की। पाकिस्तान में कोरोना की नई लहर के बायस मुतासिर अफराद की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। गुज़श्ता रोज 48,223 टेस्ट किए गए, जिनमें से 3,045 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। मुल्क में इस वक्त एक्टिव केसेज की तादाद बढ़कर 46,861 हो गई है। गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 45 अफराद जान की बाजी हार गए हैं, जबकि 2,172 अफराद की हालत तशवीशनाक है। सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 9,072 नमूनों की जांच पड़ताल की गई, जिस पर मजीद 1389 नए केसेस सामने आए हैं। वज़ीर आला ने अवाम पर जोर देते हुए कहा कि वह समाजी फासला बरकरार रखें, SOPs पर सख्ती से अमल करें और बिला वजह बाहर घूमने फिरने से गुरेज करें। मुल्तान इंतजामिया की जानिब से जलसे की इजाजत न मिलने के बावजूद PDM कारकुनों की हुल्लड़बाजी, कारकुनों ने रुकावटें हटा दी और स्टेडियम के दरवाजों के ताले तोड़ दिए। अपोजिशन जमातों के कारकुनों ने कोरोना SOPs की धज्जियां उड़ाते हुए इंतजामिया के अहकामात के बरक्स इस्तकबालिया कैंप भी कायम कर दिया। मुल्तान इंतजामिया ने कोरोना सूरत हाल के तनाजुर में जलसे की इजाजत न देने का फैसला किया है। वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज कहते हैं कि अवाम के मुस्तरद करदा और करप्शन में डूबे लोग मुल्तान में क्या कर रहे हैं। इन लोगों की आग लगाने वाली मनफी जहनीत बेनकाब हो चुकी है। अपने ट्वीट में सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि अपनी लूट मार की दौलत बचाने के लिए ये गरीब अवाम की जिंदगियों को खतरे में डालने पर तुले हुए हैं। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी इत्तलात फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि कोरोना की दूसरी लहर ज्यादा शदीद होती जा रही है। अदालती हुक्म के बावजूद PDM क़यादत मुल्तान में कानून की धज्जियां उड़ा रही है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन अपने मफादात की खातिर कौम के बच्चों को इस्तेमाल कर रही है। रावलपिंडी में रुकने कौमी असम्बली सदाकत अब्बासी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुआविन खसूसी ने कहा कि मुल्तान में कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। उन्होंने कहा कि औलिया के शहर के अमन को खराब किया जा रहा है। पंजाब हुकूमत रियासती रिट को हर हाल में कायम रखेगी। कानून शिकनों के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। उधर मुल्तान में कोरोना वायरस की दूसरी लहर में तेजी। जिले इंतजामिया की जानिब से 7 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। निश्तर अस्पताल में 172 मरीज जेरे इलाज हैं। मजीद तफसीलात बता रहे हैं इमदाद हुसैन।
मुल्तान में कोरोना केसेस में इजाफे के बाद शहरियों ने जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए मास्क के साथ रोजमर्रा के काम सर अंजाम दे रहे हैं। मुख्तलिफ मार्केटों में दुकानदार हुकूमती SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कर रहे हैं। दूसरी तरफ जिला इंतजामिया SOPs की खिलाफ वर्जियां करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखी हुई हैं। वायलेशंस पे एक्शंस भी हो रहे हैं। 350 के करीब FIRs हमने दिए हैं वायलेटर्स पे, और हमने मार्केट्स में सारे ताजरों को ये कहा हुआ है कि सैनिटाइजर्स के बगैर और मास्क के बगैर सर्विस ना दें कस्टमर्स को। गवर्नमेंट की तय करदा SOPs पर अमल दरामद कराया जा रहा है। इसके अलावा कस्टमर के पास अगर मास्क नहीं है तो उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं मास्क, और कस्टमर को सैनिटाइजर भी यूज़ करवा रहे हैं। गवर्नमेंट ने कुछ छुट्टियां दी हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप बाजार में निकल आए बच्चों को लेके और आप क्राउडेड पार्टीज वगैरह करें। मेहरबानी करें, सारे जितना कम हो सके घर से निकले और जितनी गैदरिंग कम कर सकते हैं उतनी गैदरिंग कम करें। मास्क से हम भी बच सकते हैं और जो हमारे साथ है वो भी उस डिजीज से, कोरोना से बच सकता है। मुल्तान के 7 इलाके उस्मान कॉलोनी, इस्लामपुरा, न्यू मुल्तान, शाहरुख ने आलम, ऑफिसर्स कॉलोनी, मुमताजाबाद और बाउद्दीन ज़िक्र यूनिवर्सिटी में स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज है। निश्तर अस्पताल में इस वक्त कोरोना वार्ड में 172 मरीज जेर इलाज हैं, जिनमें से 25 अफराद की हालत तशवीशनाक है, जबकि 4 मरीजों को वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया है। हाथों को साबुन से बार बार धोना, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का इस्तेमाल करके हम अपने आप को और दूसरों को कोरोना से बचा सकते हैं। इमदाद हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। दुनिया भर में कोरोना से मुतासिर अफराद की तादाद 6,21,50,000 से बढ़ गई है, जिनमें से 14,52,000 से जायद जान की बाजी हार चुके हैं। 4,30,00,000 अफराद सेहतियाब भी हुए हैं। अमेरिका में सूरत हाल बदस्तूर तशवीशनाक है और एक ही दिन में 1.5 लाख से ज्यादा नए केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि 1300 से ज्यादा हलाकतें हुई हैं। हलाकतों की मजमूई तादाद 2,71,000 से बढ़ गई है, जबकि 1,35,00,000 से ज्यादा मुतासर हुए हैं। गुर्बत और जहालत से तबाह हाल भारत में अब तक 93,60,000 अफराद वायरस से मुतासर हुए, जिनमें से 1,36,700 से ज्यादा जान की बाजी हार गए। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि आइंदा साल सितंबर तक कैनेडियन शहरियों को कोरोना की वैक्सीन लगाने का अमल मुकम्मल कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब 2021 के आगाज में वैक्सीन मुल्क में दस्तयाब होगी तो दूर दराज इलाकों में वैक्सीन पहुंचाने के लिए कैनेडियन फौज की मदद ली जाएगी। कनाडा में भी इस वक्त कोरोना की दूसरी लहर जारी है। गुज़िश्ता रोज 3,800 से ज्यादा नए केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि 75 हलाकतें सामने आईं। कोरोना की दूसरी लहर पर काबू पाने के लिए कनाडा के 10 सूबों में कारोबार और अवामी इज्तिमात पर कई पाबंदियां भी आयद की जा चुकी हैं। और यहाँ आपको बताएं, ईरान में सदर हसन रूहानी ने एटमी साइंसदान मोहसिन फ़खरीज़ादे के कत्ल की जिम्मेदारी इसराइल पर आयद करते हुए कहा है कि उनके कत्ल में इसराइल के मुलव्विस होने के ठोस शवाहिद मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि फ़खरीज़ादे के कत्ल का जवाब दिया जाएगा, मगर जज्बात के साथ नहीं, तहम्मुल के साथ। उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क को जल्दबाजी में फैसला करने के जाल में फंसाया नहीं जा सकता। ईरान के जोहरी प्रोग्राम से मुंसलिक सीनियर साइंसदान मोहसिन फ़खरीज़ादे को गुज़श्ता रोज़ दारुल हुकूमत तेहरान के करीब दोमान के इलाके आबिद सर्द में ग्रेनेड हमले के बाद मशीन गन की फायरिंग से हलाक कर दिया गया था। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में पुलिस की जानिब से एक सियाफाम म्यूजिक प्रोड्यूसर तशद्दुद की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है, जिसके बाद यूरोप भर की आवाम में तशवीश पाई जाती है। फ्रांसीसी हुकाम के मुताबिक सियाफाम म्यूजिक प्रोड्यूसर पर तशद्दुद करने वाले पुलिस अफसरान को मुअत्तल कर दिया गया है, जबकि उनसे तफ्तीश भी की जा रही है। सदर मैक्रोन ने वाक़े पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि फ्रांस का सर शर्म से झुक गया है। ये जारहाना रवैया किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं। उन्होंने कहा कि पुलिस को मिसाली फोर्स होना चाहिए और पुलिस पर लोगों के एतमाद को बहाल करने के लिए हमें नया रास्ता तलाश करना होगा। नाज़रीन, आपको आगाह करें कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा, जबकि कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और शिमाली बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाकों में मौसम शदीद सर्द और मतला जुज़वी अब्र आलूद रहेगा। पंजाब के मैदानी इलाकों में सुबह के औकात में धुंध पड़ने का इम्कान जाहिर किया गया है। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत लैब -10, कालाम -9, गोपस -6, अस्तोर स्कर्दू -5, दीर, मालम जब्बा, बगरोट, पाराचनार, हुंजा -3, गिलगित, कलात और कोयटा में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की तफसील आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर।
موسم کا حال آپ جان چکے ہیں، رخ کریں گے واپس مین ڈیسک کا۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ آپ کو بتائیں کہ گزشتہ ہفتے پاکستان سٹاک ایکسچینج میں ملا جلا رجحان دیکھا گیا، تاہم زیادہ کاروباری دنوں میں انڈیکس نے بلند سطح کو چھوا۔ تفصیلات بتا رہے ہیں ذیشان احمد خان۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے شرح سود کو 7% پر برقرار رکھنے اور سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافے کے اثرات براہ راست پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر مرتب ہوئے۔ اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاروں نے نہ صرف پروفٹ ٹیکنگ کی بلکہ مارکیٹ کو بھی اسٹیبل رکھا۔ گزشتہ کاروباری ہفتے کے دوران پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ملا جلا رجحان دیکھنے میں آیا۔ کاروباری ہفتے کے دوسرے دن انڈیکس میں 230 پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا اور 100 انڈیکس نے 40,000 کی سطح کو برقرار رکھا۔ تیسرے روز انڈیکس میں 514 پوائنٹس کا اضافہ ہوا اور 100 انڈیکس 40,431 کی سطح پر پہنچ کر 40,373 پر بند ہوا۔ چوتھے روز انڈیکس نے ایک بار پھر 40,000 کی سطح کو عبور کیا اور 100 انڈیکس میں 653 پوائنٹس کا اضافہ ہوا۔ پانچویں روز انڈیکس میں پوائنٹس کی کمی واقع ہوئی، تاہم مارکیٹ میں کاروبار کرنے والی کمپنیوں کی تعداد اور کاروباری حجم میں اضافہ دیکھا گیا۔ اسٹاک مارکیٹ میں کثیر سرمایہ کاری اس بات کی غمازی کر رہی ہے کہ حکومت کی مثبت معاشی اور اقتصادی پالیسیوں پر سرمایہ کار مسلسل اپنے اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں۔ ذیشان احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے ارکان قومی اسمبلی سردار محمد خان لغاری، عمر اسلم خان اور تحریک انصاف کے رہنما ابرار الحق نے لاہور میں ملاقات کی۔ وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار نے کہا کہ پی ڈی ایم مسترد شدہ سیاستدانوں کا ایک ایسا ٹولہ ہے جو اپنی کرپشن چھپانے کے لیے احتجاج کی سیاست کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کو اپوزیشن کے جلسوں سے کوئی خطرہ نہیں، تاہم کرونا SOPs کی خلاف ورزی پر قانون کے مطابق کارروائی ہوگی۔ حکومت عوام کی زندگیوں کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدام یقینی بنائے گی۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار نے لاہور سے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ نیا پاکستان منزلیں آسان پروگرام کے دوسرے مرحلے کے تحت دیہی علاقوں میں مجموعی طور پر 1076 کلومیٹر نئی سڑکوں کی تعمیر و مرمت ہوگی، جن پر 14 ارب روپے لاگت آئے گی۔ انہوں نے کہا کہ سڑکوں کی تعمیر سے کھیت تا منڈی تک رسائی میں بہتری ہوگی اور کاشتکار بر وقت اپنی فصلیں مارکیٹ تک پہنچا سکیں گے۔ نیا پاکستان منزلیں آسان پروگرام کے لیے آئندہ سال بھی خصوصی فنڈز رکھے جائیں گے۔ اور یہاں آپ کو بتائیں بیگم شمیم اختر کو لاہور میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ شریف میڈیکل سٹی رائیونڈ میں ان کی نماز جنازہ علامہ راغب نعیمی نے پڑھائی، جس میں سیاسی رہنماؤں اور مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ اس موقع پر اپوزیشن لیڈر شہباز شریف سے نماز جنازہ میں شرکت کرنے والے افراد نے ملاقاتیں کی اور اظہار افسوس کیا۔ مرحومہ بیگم شمیم اختر چند روز پہلے لندن میں انتقال کر گئی تھیں۔ ان کے احسال و ثواب کے لیے رسم کل کل 29 نومبر کو ہوگی۔ اور ناظرین، سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک کے 551ویں جنم دن کی 3 روزہ تقریبات گردوارہ جنمستان ننکانہ صاحب میں جاری ہیں۔ تقریبات میں بھارت سمیت مختلف ممالک اور اندرون ملک سے بڑی تعداد میں سکھ یاتری شریک ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں جاوید احمد معاویہ۔ بابا گرو نانک کے جنم دن تقریبات کا آغاز اکھنڈ پاٹ کی رسم سے ہوا، جس میں بھارت سمیت مختلف ممالک اور اندرون ملک سے سکھ یاتریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر پاکستان کی ترقی و خوشحالی، امن و امان اور دنیا بھر سے کرونا وائرس کے جلد خاتمے کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ گورنمنٹ آف پاکستان اور پاکستان کی تمام ادارے سکھ قوم کے ساتھ کھڑی ہیں۔ گرو نانک صاحب کے بانی میں ہے کہ آپ پہ بیچ آپ پہ ہی کھائے، نانک حکم ہی آئے جائے، یعنی کہ اللہ کے حکم میں آنا ہے اور اللہ کے حکم میں جانا ہے۔ 3 روزہ تقریبات کے دوران سکھ یاتری اپنی مذہبی رسومات ادا کریں گے۔ سکھ یاتریوں نے جنم دن تقریبات کے لیے رہائش، لنگر، ٹرانسپورٹ اور سیکیورٹی کے بہترین انتظامات کرنے پر وزیر اعظم عمران خان اور پنجاب حکومت کا شکریہ ادا کیا ہے۔ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ EPBDT ਦੇ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਆਪਣੇ ਪਰੋਤੇ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਦੀ ਅਤੀਅਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ननकाना साहिब आके बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत एंजॉय हो रहा है और हम PM साहब से थैंक यू करते हैं। ذیلی انتظامیہ کی طرف سے تقریبات کے دوران کورونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے بھی خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ ماسک لگانا، سوشل ڈسٹینسنگ اور سینیٹائزر ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮਾਸਕ ਤੇ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈਗੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹਦੀ। पुलिस की तरफ से सिख यात्रियों की सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त इंतजामात किए गए हैं। ननकाना साहब में 3 रोज क्याम के दौरान सिख यात्री शहर में वाक़या 7 गुरुद्वारों की यात्रा और वहां अपनी मजहबी रसूमात भी अदा करेंगे। जावेद अहमद मुआविया, PTV न्यूज, ननकाना साहिब।
वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान के चुनाव के लिए इंतखाबी अमल सोमवार को होगा। गिलगित बल्तिस्तान सेक्रेटेरिएट से जारी होने वाले शेड्यूल में कहा गया है कि उम्मीदवार सोमवार सुबह 11:30 बजे तक अपने कागजात नामजदगी जमा करवा सकते हैं। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के बाद उम्मीदवारों की लिस्ट दिन 12 बजे आवेज़ा की जाएगी, जबकि उम्मीदवार दिन 2 बजे तक कागजात नामजदगी वापस ले सकते हैं। दोपहर 4 बजे वज़ीर आला का चुनाव होगा। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि जनूबी पंजाब की महरूमियां दूर करना और अवामी मसाइल का हल हमारी सियासत का मकसद है। उन्होंने कहा कि हमारे दौर में जनूबी पंजाब की महरूमियां दूर करने के लिए खुसूसी पैकेज दिए गए। चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात में वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा की सरबराही में जनूबी पंजाब से ताल्लुक रखने वाली मारूफ सियासी शख्सियात विहाड़ी से नून लीग के साबिक MPA फराह मंजूर बलूच रिंद ने साथियों समेत पाकिस्तान मुस्लिम लीग में शमूलियत का ऐलान किया। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि जनूबी पंजाब में पार्टी को फाल बनाने के लिए तंजीम साजी का अमल जारी है। अवामी खिदमत का जज्बा रखने वाले कारकुनों को आगे लाया जाएगा। साबिक MPA फराह मंजूर ने कहा कि नवाज शरीफ का बयानिया इदारों और मुल्क के खिलाफ है। हम मुहिब्बे वतन लोग हैं, इसलिए मुल्क तोड़ने वालों को छोड़कर मुल्क को जोड़ने वालों के काफिले में शामिल हो गए हैं। वज़ीर कानून पंजाब राजा बिशारत से सर्विंग स्कूल्स कॉलेजेस एसोसिएशन के वफ्द ने लाहौर में मुलाकात की। मुलाकात में वफ्द ने सूबाई वज़ीर राजा बिशारत को कोरोना के बायस निजी तालीमी इदारों को दरपेश मसाइल से आगाह किया। वज़ीर कानून पंजाब ने तालीमी इदारों को दरपेश मसाइल को फौरी तौर पर हल करने की यकीन दहानी कराते हुए तालीम का फ़रोग़ हुकूमत का विजन है। और यहाँ आपको बताएं, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर सेहत तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा है कि दिसंबर में कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट को मरीजों के लिए खोल दिया जाएगा। पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के दौरे के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में सूबाई वज़ीर सेहत ने कहा कि वज़ीर आज़म के विजन के मुताबिक सेहत के शोबे में बेहतरी लाने के लिए मज़ीद मौसर इक़दाम किए जा रहे हैं। वजारत सनत पैदावार के ज़ैली इदारे नेशनल प्रोडक्टिव ऑर्गेनाइजेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आलमगीर चौधरी ने कहा है कि बलूचिस्तान में सनत व तजारत और ज़राई शोबे को जदीद खतूत पर उस्तवार किया जाएगा, जिसके लिए मुल्की और आलमी माहिरीन की भी खिदमात ली जाएंगी। इस्लामाबाद में ऐवान सनत व तजारत कोयटा के अहदेदारों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि वो मुल्क भर में पैदावारी शोबाजात को जदीद खतूत पर उस्तवार करने के लिए कोशां हैं, क्योंकि यहाँ की सनत व तजारत और ज़राअत जैसे शोबों से वाबस्ता अफराद तकनीकी मुआवनत न होने की वजह से दूसरों का मुकाबला नहीं कर पाते। फलदार पौधों को मौसमी असरात से बचाना इंतहाई ज़रूरी है। इस हवाले से महकमा ज़राअत की सिफारिशात पर अमल करने से काश्तकार अपने फलदार दरख्तों को बड़ी हद तक सर्दी और कोहरे के असरात से महफूज रख सकते हैं। तफसील मलिक उमर से। बागात की कामयाबी और नफा बख्श काश्त का इन्हसार उनकी मुनासिब देखभाल पर होता है। सख्त सर्दी, गर्मी, यालाबारी और आंधियों से बागात के छोटे और बड़े पौधे बहुत मुतासिर होते हैं। फलदार पौधों को मौसमी असरात से बचाने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना बेहद जरूरी है। पौधों को कोहरे से बचाना होता है, स्पेशली जो जिस तरह आपको ये नजर आ रही है, नर्सरी नजर आ रही है, इसमें छोटे पौधे हैं, तो छोटे पौधे जो है ज्यादा मुतासर होते हैं इस चीज से, तो उनको बचाना बहुत जरूरी होता है। चाहे वो कुछ छप्पर बना लें, पराली है, सरकंडा है, जो भी है, जिस तरह भी है। बाज़ मुशाहदे में ऐसा भी है कि किसान जो खाद की उनके पास बोरियां होती हैं वाफिर मिकदार में मौजूद होती हैं, तो वो उनके ऊपर डाल देते हैं। लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि जब किसी पौधों के ऊपर वो डालते हैं तो उनको नीचे से खुला रखें। महकमा ज़राअत के मुताबिक पौधों को ढांपने, तनों पर मिट्टी चढ़ाने और बागात में धुनी देने से कोहरे के असरात से बचा जा सकता है। कोहरे से बचाव के लिए आपने ये करना है कि छोटे पौधों को आपने पराली से, किसी शापर से या कोई भी आपके पास मैनेजमेंट है उससे ढांप लेना है, और जो बड़े पौधे हैं उनके लिए आपने चूने का इस्तेमाल करना है, उनके तनों के ऊपर चूना लगा देना है, जिससे वो दर्जा हरारत बेहतर हो जाता है। और तीसरा आपने ये करना है कि कोई धुएं का इंतज़ाम कर लें। अगर आप धुएं का इंतज़ाम करते हैं तो भी रात को दर्जा हरारत बेहतर हो जाता है और कोहरे के जो असरात हैं वो ज़ायल हो जाते हैं। और चौथा आपने ये करना है, अपने बागात को नम रखना है, यानी कि पानी लगा कर रखना है। फलों के बागात लगाने पर न सिर्फ भारी अखराजात उठते हैं बल्कि कई साल की मेहनत भी दरकार होती है। बर वक्त एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने से काश्तकार न सिर्फ सर्द मौसम से अपने बागों को महफूज रख सकते हैं बल्कि मुनासिब पैदावार भी हासिल कर सकते हैं। मलिक उमर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, रावलपिंडी। और यहाँ आपको बताएं, कैंसर के मर्ज में मुब्तला 14 साला बच्चे हसनैन की ख्वाहिश को पूरा करते हुए उन्हें ASP के रैंक पर पुलिस अफसर बनाया गया। मेक अवे विश फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम इस बच्चे की ख्वाहिश को पूरा किया गया। तफसील ज़िशान अहमद से। कैंसर और लाइलाज और पेचीदा अमराज में मुब्तला बच्चों की ख्वाहिशात को पूरा करना मेक अ विश फाउंडेशन का शेवा रहा है। फाउंडेशन ने मलीर के रिहायशी बच्चे हसनैन की असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बनने की ख्वाहिश को पूरा करते हुए कराची पुलिस ऑफिस में तकरीब का एहतमाम किया।
اس موقع پر ایڈیشنل آئی جی سندھ غلام نبی میمن نے بچے کو ASP کے رینک لگائے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایڈیشنل آئی جی سندھ غلام نبی میمن کا کہنا تھا کہ حسنین جیسے باہمت بچے ہمارے ہیرو ہیں۔ کینسر جیسے موذی مرض میں مبتلا بچہ حسنین اپنی خواہش کی تکمیل ہونے پر بہت خوش نظر آیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اس نے پولیس پر اپنے اعتماد کا اظہار کیا۔ اب تک ہم 13,000 سے زیادہ خواہشیں پوری کر چکے ہیں۔ ہم ان کی عمر تو نہیں بڑھا سکتے، عمر تو اوپر والے کے ہاتھ میں، لیکن جو بھی عمر بچی ہے اس بچی کی، اس میں اتنی خوشیاں ڈال دی ہیں انہوں نے اور ہم نے سب مل کے۔ معصوم حسنین بھی پولیس افسر بن کر پھولا نہ سمایا، پروفیشنل انداز میں سینئرز کو سلوٹ کیا اور شہر کے گشت پر بھی روانہ ہوا۔ معصوم بچوں کے چہروں پہ خوشی بکھیرنا نہ صرف لائق تحسین عمل ہے بلکہ قابل تقلید اقدام بھی ہے۔ ذیشان احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ السلام علیکم، سپورٹس نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد انیس۔ بلوچستان انٹرنیشنل اسکواش لیگ کا ٹائٹل طیب اسلم اور آمنہ فیاض نے اپنے نام کر لیا۔ کوئٹہ میں مردوں کے فائنل میں طیب اسلم نے عاصم خان کو 3-1 سے ہرا کر چیمپئن بننے کا اعزاز حاصل کر لیا۔ خواتین میں آمنہ فیاض نے فائزہ ظفر کو 3-0 سے ہرا کر ٹائٹل جیت لیا۔ ایونٹ میں انٹرنیشنل کھلاڑیوں اور قومی کھلاڑیوں کے مابین نمائشی میچز بھی کھیلے گئے۔ ناظرین، 28 نومبر عالمی اسکواش میں پاکستان کے لیے اہم تاریخ۔ 28 نومبر 1981 کو عظیم کھلاڑی جہانگیر خان نے ٹورنٹو میں ورلڈ اوپن اسکواش ٹائٹل جیت کر کم عمر ورلڈ چیمپئن بننے کا اعزاز حاصل کیا تھا۔ اس حوالے سے اسکواش کے بے تاج بادشاہ نے PTV نیوز سے خصوصی گفتگو کی۔ جب میں نے اپنا کیریئر شروع کیا تھا تو اس کا کوئی مجھے اندازہ نہیں تھا، کیونکہ جس سے مسائل سے میں گزرا ہوں اور جس طرح کی مجھے فزیکلی اور ہینڈی کیپس کے حوالے سے بھی اور کمزوری کے حوالے سے بھی، اور پھر ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ میں کبھی اسکواش کھیل بھی نہیں سکوں گا۔ آج الحمدللہ جب پلٹ کے دیکھتا ہوں کہ جس میں 10 برٹش اوپن بھی ہیں، 6 ورلڈ اوپن بھی ہیں، 555 میچز بھی ہیں، تو یہ سب میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ اپنے جذبے کے ساتھ، محنت کے ساتھ، ڈسپلن کے ساتھ فوکس ہو کے چلیں تو آپ کی ہر چیز جو ہے ناممکن چیز جو آپ سوچتے ہیں وہ ممکن میں بدل جاتی ہے۔ کھیلوں کی دنیا میں پاکستان کے لیے ایک اور عالمی ریکارڈ۔ مارشل آرٹس ماسٹر راشد نسیم نے پنچ کی مدد سے 1 منٹ میں 62 کلے سپورٹنگ ٹارگٹ چکنا چور کر دیے۔ اس سے پہلے یہ ریکارڈ 40 مرتبہ کے ٹارگٹ کو توڑنے کا تھا۔ گنیز ورلڈ ریکارڈ نے ای میل کے ذریعے تصدیق کرتے ہوئے تمام تفصیلات اپنی ویب سائٹ پر بھی جاری کر دی ہیں۔ راشد نسیم نے کامیابی سے اپنا 62واں عالمی ریکارڈ قائم کیا۔ راشد نسیم کی اکیڈمی کا یہ 77واں عالمی ریکارڈ ہے۔ پشاور میں انڈر 16 جونیئر نیشنل گیمز کا آغاز ہو گیا ہے۔ ایونٹ میں 7 مختلف کھیلوں کے مقابلے پشاور اور چارسدہ میں کھیلے جا رہے ہیں۔ ایونٹ کے پہلے روز ہاکی کے پہلے میچ میں سندھ کی ٹیم نے پنجاب کو 1-0 سے شکست دی۔ واحد گول فراز نے 56ویں منٹ میں پینلٹی کارنر پر کیا۔ اس موقع پر چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا ڈاکٹر کاظم نیاز نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کھیلوں کی میزبانی ہمارے لیے خوشی کا باعث ہے۔ دوسرے صوبوں سے آئے کھلاڑیوں کو بہترین سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ پاکستان ہاکی فیڈریشن کے سیکرٹری جنرل آصف باجوہ نے کہا ہے کہ انڈر 16 گیم سے ہاکی کے اچھے کھلاڑی ابھر کر سامنے آئیں گے۔ یہ پاکستان کے فیوچر کے لیے ایک مائل سٹون ثابت ہوگا۔ بہت بڑا ٹیلنٹ ہے، بڑی محنت کی جا رہی ہے اور مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ اگر اس پروگرام میں ہم کامیاب ہو گئے انڈر 16 میں انشاءاللہ تعالیٰ تو پاکستان کی ہاکی جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنی گلوری پاسٹ کو ضرور ریوائیو کرے گی۔ لنکا پریمیئر لیگ کے تیسرے میچ میں دمبولا وائکنگز نے کینی ٹسکرز کے خلاف 4 رن سے کامیابی حاصل کر لی۔ بارش کے باعث فیصلہ ڈکورتھ لوئس نظام کے تحت ہوا۔ ہمبن ٹوٹا میں کھیلے گئے میچ میں وائکنگز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 4 وکٹوں پر 195 رنز بنائے۔ داسن چناکا نے 73 اور سمت پٹیل نے 58 رنز کی اننگز کھیلی۔ جواب میں ٹسکرز نے 9.4 اوورز میں 3 وکٹوں پر 84 رنز بنائے تھے کہ بارش کے باعث میچ کو روک دیا گیا۔ مقررہ وقت تک دوبارہ میچ شروع نہ ہونے پر ڈکورتھ لوئس میتھڈ کے تحت دمبولا وائکنگز کو فاتح قرار دیا گیا۔ ایونٹ کے مقابلے PTV سپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ اور نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ کے درمیان رابطے کے بعد دورہ نیوزی لینڈ پر موجود قومی اسکواڈ کی آئسولیشن میں نرمی کر دی گئی ہے۔ دونوں بورڈز کی مشاورت کے بعد اسکواڈ میں شامل ارکان کے 2 کووڈ-19 ریزلٹس منفی آنے والوں کو دوبارہ چہل قدمی کی اجازت مل گئی ہے۔ PCB نے کرکٹ نیوزی لینڈ سے قومی کھلاڑیوں کی ٹریننگ بھی جلد کھولنے کا کہا ہے۔ ارکان کا تیسرا کورونا ٹیسٹ 30 نومبر کو ہوگا۔ کھیلوں سے اتنا ہی، اب آپ کے لیے چلتے ہیں مین ڈیسک کی طرف۔